Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Yes, very warm welcome to all of you after a weekend. Okay, so before I start today's topic, and this is about slides, not slide basic, but text basics. So, anyone having any doubt, any query, question regarding PowerPoint or maybe regarding Excel? Yes, everyone, please. If you, Hmm, boss. Okay, I think nobody is having question. Neither PowerPoint nor Excel. Okay, so let me go ahead. So जैसे मैंने बताया कि आज का टॉपिक है टेक्स्ट बेसिक्स. सो पावर पॉइंट में जब आप टेक्स्ट एंटर करते हो, सो बेसिकली यू आर एंटरिंग द टेक्स्ट इनटू स्लाइड, सिलेक्टेड स्लाइड. It is unlike, it is unlike Microsoft Word, where you have a big page, and into that page you can write whatever you want. So it is not exactly same thing with the PowerPoint. So in PowerPoint, normally you insert a text in the form of the bullets and numbers. And the text and the bullets that you enter into the PowerPoint slides with minimum words. Okay. So let us learn uh, how to add text and all the basics related to text. So as usual, I'm going to share a video about this topic, and then we will do practice. Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life. Working with text in PowerPoint is easy. It's similar to working in a word processing program like Microsoft Word, so the experience should be pretty familiar to you. All you have to do is insert a text box or click an existing placeholder, and your cursor will appear inside. Now you can type anything you want. You can use the spacebar on your keyboard to add spaces, and if you want to start a new line, just press Enter. If you make a mistake like I did, that's okay. You can press backspace or delete to fix it. You can also use your keyboard's arrow keys to move the insertion point left, right, up, or down. This is useful if you only need to move a few spaces or lines at a time, but you can also jump over entire words at a time. Hold the Control key and press the left or right arrow keys to jump over one word at a time. There may come a time when you need to work with text in your presentation, maybe to copy and paste it or to move it to a different location. To do that, you need to know how to select text first. Just click and drag your mouse over the text, then let go. See how it's highlighted gray? That means the text is selected. To select all of the text on an entire slide, go to the Select command on the Home tab and choose Select All. Pressing the Control key and A key on your keyboard at the same time will also select all the text. Now that we know how to select text, let's try copy and paste. Just click the Copy command on the ribbon, choose where you want the text to go, then click Paste. You can also get to these commands by right-clicking on the slide. For example, to cut and paste, start by selecting your text,
then right-click and choose Cut. The original text will disappear, and now we can paste it anywhere we want by right-clicking again. If you want to move a selection of text from one place to another, you can use the drag and drop method. First, select the text you want to move. Now click and drag where you want it to go. If you make a mistake or change your mind, you can use the Undo button on the toolbar to undo the last action. To the right is the Redo button. This allows you to reverse the last undo. Next, I'd like to take a look at formatting options like font color, size, and alignment, all of which can have a big effect on your presentation. To format text in PowerPoint, you can select just the text you want, or you can select an entire text box and format everything inside at once. You might want to start with the options in the font group, where you'll find lots of different features that you can play around with. In this example, I'm going to choose a different font color, a different font, and a slightly bigger size. I'm also going to format the text in italics. See what a difference all these changes can make? If you want to change the placement or alignment of your text, take a look at the commands in the paragraph group. Your options include left, center, right, and justified, which can be used to align paragraphs. I think centered looks best. Also in this group, you can change the vertical alignment, the text direction, or add or remove bullets from your text box. These are all great ways to customize your text, so your slide looks exactly the way you want. Now you know the basics, including cut, copy, and paste, undo and redo, and even some formatting techniques. That should be everything you need to know to work with text in PowerPoint. ओके सो आप लोगों ने जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन देखा उसके अंदर टेक्स्ट के बेसिक्स आपने देखे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप टेक्स्ट एंटर करते हो तो क्या क्या उसके साथ चेंजेस कर सकते हो, कैसे एडिट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपने देखी। अभी यही सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, फिर आपको मैं प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ, ठीक है? ओके, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट शोइंग यू, मुझे पूछना है कि आप लोगों ने वीकेंड में क्या क्या प्रैक्टिस की। पावर पॉइंट में कुछ प्रैक्टिस की, एक्सेल में कुछ प्रैक्टिस की कि नहीं की? जो है आप ऑनेस्टली बताना, अगर नहीं किया है तो नहीं किया है, ठीक है? तो मेरे स्क्रीन पे आलोक है, आलोक से मैं स्टार्ट करता हूँ। Yes. हाँ बोलो आलोक। Did PowerPoint. सॉरी, कम अगेन। A little louder. We did PowerPoint. Huh? ओके, यू डिड पावर पॉइंट प्रैक्टिस। Yeah. एंड व्हाट अबाउट एक्सेल? Not this way. Not. Not. Why not power? Why not Excel? Just time नहीं था This time then. और भी कुछ कुछ हो रहा था इसलिए busy था weekend. हाँ, I understand the weekend is busy. I understand. But PowerPoint का प्रैक्टिस किया ना तो थोड़ा थोड़ा Excel का भी प्रैक्टिस करो आलोक, क्योंकि Excel में फॉर्मूला एंड फंक्शंस है, PowerPoint में कोई फॉर्मूला फंक्शंस नहीं है, इजी है PowerPoint। ओके, नेक्स्ट यशवंती। यशवंती जरा सर उठाओ, कैमरा के सामने बैठो। सर मैंने प्रैक्टिस नहीं की। ओके गुड। अभी मुझे बताओ कि कब करोगे? सर टुमारो। टुमारो नेवर कम। क्या सर? कल 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 वापस आप कल मुझे बोलोगे, बताए कल करूंगी। नहीं। अच्छा, नहीं किया तो उसके लिए कोई मतलब ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा इसलिए नहीं किया, कि क्या वजह? सर थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा।
क्या क्लियर नहीं हो रहा है अच्छे से? सर जैसे आपने लास्ट क्लास में बताया था, पावर पॉइंट के सारे ऑप्शन आपने क्लियर किए थे, हम्म लेकिन नेक्स्ट डे जब मैंने कंप्यूटर पे किया ना तो फिर नहीं हुआ, इसीलिए। हम्म। तो इसलिए तो मैंने सबसे पहले क्लास शुरू होने के टाइम पे पूछा कि आपका कोई क्वेश्चन है, तो आपने कुछ नहीं बताया मुझे। अगर आप मुझे बताते कि मुझे ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको हेल्प करता ना। मैं इसीलिए तो यहाँ पे हूँ। और दूसरी बात, जब मैंने वो पूरा 1 घंटे का पूरा वीडियो जो अपलोड किया है ना, अगर आप उसको भी देखते तब भी समझ में आ जाता। और रही बात कल लास्ट टाइम का जो क्लास था ना, दैट वाज ऑन स्लाइड बेसिक्स, है ना। स्लाइड के बेसिक्स मैंने बताए थे। स्लाइड कैसे ऐड करते हैं, स्लाइड को कैसे डिलीट करना है, स्लाइड को कैसे हम्म। एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है। वही चीजें मैंने कवर की थी लास्ट सेशन में। तो सर आई थिंक, फ्राइडे को तो मैं क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो पाई थी क्योंकि अरे तो प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ, मुझे याद है फ्राइडे को तो सिर्फ 3 लोगों को ही मैंने क्लास पढ़ाया था। तो बाकी सब लोगों को वीडियो देख के आना चाहिए, है ना। और गुरुवार का मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने क्या सिखाया था गुरुवार को। मैं अटेंडेंस शीट देखूँ तो शायद मुझे पता चले। गुरुवार को मैंने आपको क्रिएटिंग एंड ओपनिंग प्रेजेंटेशन, सेविंग के बारे में, शेयरिंग क्या होता है, वो सारी चीजें बताई थी। तो वीडियो देख लो एक बार, यशवंती। ठीक है, ठीक है। वीडियो देखो। फिर अगर उसके बावजूद भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो पूछो। ओके ओके, सर। नीलोफर। ये सर पावर पॉइंट का ही प्रैक्टिस करा। एक्सेल में मुझे अब थोड़ी क्वेश्चन बचे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ओके, गुड। निनाद। आवाज आ रही है सर? हाँ निनाद, बताइए। एक्चुअली मैं एक्सेल का थोड़ा प्रैक्टिस कल के एचलुकअप और वाले को अपने अपने ये सिखाया था थोड़ा सा। हम्म वो कैसे निकालने का है। और हम्म और और थोड़ा ग्राफ का। ओके हाँ वो थोड़ा मैं कर रहा हूँ मैं। ओके, अ, ठीक है। और पावर भी का नहीं किया मैंने। ओके, तो वो कब तक हाँ करोगे? कल तक कर दूंगा। कल तक। कल। ठीक है, कल। ओके निनाद। ठीक। रूही। सर रूही ने थोड़ा प्रैक्टिस किया एक्सेल का, हम्म, और पावर पॉइंट का वो नहीं था, थोड़ा इशू था नेटवर्क का, तो वो वीडियो देखा और आज थोड़ा प्रैक्टिस किया, फिर पावर पॉइंट का दोपहर को भी थोड़ा। ओके, ठीक है। हम्म। नेटवर्क का इश्यू था, 2 दिन थोड़ा रहा था, माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज हुआ था। हम्म। उसकी वजह से सब लोगों को परेशानी हुई थी। तो दैट इज ओके, बट ये वीकेंड में तो माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज नहीं था, सैटरडे संडे। ठीक है, ओके। तो जिनका बाकी है प्रैक्टिस वो उसको कंप्लीट करो। राइट। सो अब मैं ये आज के जो सेशन में मैंने आप लोगों को एक फाइल डाउनलोड करने को बोला था। सेम फाइल में ओपन कर रहा हूँ और उसके अंदर प्रैक्टिस हम करते हैं। ये फाइल का नाम था शायद टेक्स्ट बेसिक। तो मुझे यहाँ पे वो फाइल नहीं दिखाई दे रही है, तो मुझे कहाँ से सर्च करूँ? हाँ, मिल गया। माइक्रोसॉफ्ट। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। एक्चुअली मैंने वो अपने अपने जो डॉलर्स का सिखाया था ना मुझे। हाँ ये। हाँ, हाँ उसका भी मैंने प्रैक्टिस किया है। यस, वेरी गुड।
गुड डिनर। अब उसका वो कैसे निकालने का है ओके, एक्सेल में। एक्सेल में ना, राइट। यस। ओके, तो मैं अभी जो प्रेजेंटेशन पे हम प्रैक्टिस करने वाले वो प्रेजेंटेशन एक बार दिखाता हूँ। हम लोग ये प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करेंगे, टेक्स्ट बेसिक्स के ऊपर। यहाँ पे इतने स्लाइड्स है। ये मैंने आपको जस्ट क्लिक करके दिखाया, स्लाइड शो नहीं किया है। ओके, अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ और एक एक हम पॉइंट लेते हैं अभी। तो सबसे पहले है टेक्स्ट को एडिट करना है बेसिक्स के अंदर, तो आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बिफोर यू मूव और अरेंज द टेक्स्ट बॉक्स, यू नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल and click. After that you have to click next to the text you want to select, ड्रैग करना है। माउस ओवर करके हम टेक्स्ट को ड्रैग कर सकते हैं, उसके बाद हम जहां पर भी चाहिए वहां पर रिलीज कर सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट का ड्रैग करके मूव करना। तो हम एक बार इसको देखते हैं कि हम कहाँ से कर सकते हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन देखता हूँ। मैं दो चीजें साथ में कर रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन को मैनेज कर रहा हूँ और दूसरा मैन्युअल को मैनेज कर रहा हूँ। तो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है सर। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया है इसलिए नहीं दिख रहा है। ओके। अभी मैं करूंगा स्क्रीन शेयर। हाँ, ये मैंने स्क्रीन शेयर किया आपके साथ। अब दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले ड्रैग एंड ड्रॉप की। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, पोगो, लैब मिक्स, 5 मोस ओल्ड, आई डोंट अंडरस्टैंड द MOS डॉट क्या है, और मे भी हो सकता है 5 मंथ्स ओल्ड होगा। Right, फीमेल 5 है, months. हाँ फीमेल है, और 19 पाउंड इसका वेट है। लाइक्स लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच, डिसलाइक्स ड्रामा। अब यहाँ पे हम लोग ड्रैग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं अगर इसको पहले एस्केप कर देता हूँ। हाँ, मैंने एस्केप कर दिया। अभी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस यूज किए हैं। जैसे ये पोगो लिखा है तो एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है। फिर ये इंफॉर्मेशन वो अलग टेक्स्ट बॉक्स में। इन दोनों को अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में इसलिए रखा है ताकि ये पोगो जो है उसका फॉन्ट कलर और फॉन्ट साइज अलग रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन को ड्रैग करके, मतलब उसको सिलेक्ट करके मुझे मूव करना है। जैसे ये वाला टेक्स्ट है, अब इतना टेक्स्ट मुझे अलग जगह पे चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, वापस इसको मैं बताता हूँ कैसे सिलेक्ट करेंगे। ऐसे करके माउस से सिलेक्ट किया। अब इसको माउस पॉइंटर से लेफ्ट बटन से मैंने पकड़ के रखा है और मैंने ड्रैग और यहाँ पे आके ड्रॉप किया। मैं इसको अंडू करता हूँ तो आपको चेंज पता चलेगा। ये पहले लैब मिक्स और फीमेल जो लाइन है ना वो ऊपर थी, मैंने इसको सिलेक्ट की, फिर इसको ड्रैग और अब यहाँ पे ड्रॉप कर दूं। तो थोड़ा सा चेंज आपको ये लगा होगा। नीचे आए। नहीं, नीचे आया। ऊपर तो स्पेस उतना ही है जितना था। ओके, सो ये इस तरह से होगा। ये कर सकते हैं हम इस तरह से, ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन, इसको अगर मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो मैं अभी इसको नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नीचे ये लाइन के बाद है ना कोई स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने स्पेस बनाया
जैसे मैंने एक बार एंटर की प्रेस की तो यहाँ पे स्पेस बन गई। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो देखो अब ये होगा। अच्छा एक मिनट, मैं वापस देखता हूँ ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंगल, अब कितने स्पेस हो गए, 2 स्पेस हो गई। मैं एक लाइन एक एक करके करता हूँ। एक लाइन सिलेक्ट किया इधर करा और ये किया। हाँ एक लाइन होगा, 2 एक साथ नहीं हो रहे। अगर मैंने डिसलाइक को भी सिलेक्ट किया और नीचे रखा तो डिसलाइक नीचे गया। डिसलाइक को सिलेक्ट करके मैं इसको और नीचे ले जाऊंगा ना तो वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक स्पेस है तो एक लाइन ऐसे नीचे जाएगी। तो इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। likes long walks on the beach ला highlight करून drag करून you can bring it down. हाँ ओके, उसके बाद देखते हैं, सॉरी मुझे स्टॉप करना है इसको। उसके बाद देखते हैं टू कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट। तो जिस टेक्स्ट को हमें कॉपी पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड यूज करना है। कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हो, या तो ऊपर मेन्यू में जाके कंट्रोल कॉपी सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, और फिर आपको जहां पे चाहिए वहां पे पेस्ट कर सकते हो। सेम वे कट पेस्ट भी कर सकते हो। और कौन सी टेक्स्ट को हम कट पेस्ट करेंगे एक बार प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। इसी स्लाइड में कर लेते हैं। जैसे मैंने ये टेक्स्ट से मुझे कट करनी है तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स करता हूं तो वो कट हो गई वो टेक्स्ट। ठीक है, अब वो टेक्स्ट को मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने यहाँ पे कर्सर, मतलब यहाँ माउस से मैंने क्लिक किया तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, और कंट्रोल वी किया तो वो टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो ये मैंने किया कट पेस्ट। वापस इसको मैं अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जेड से, तो वो अपनी जगह पे आ गई। अगर मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो सेम टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी, तो ये हो गया कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसको भी मैं अंडू कर रहा हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। ड्रैग एंड ड्रॉप हमने देख लिया। फॉर्मेटिंग एंड अलाइनमेंट अब देखते हैं कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे अलाइनमेंट करेंगे। मैं इस स्लाइड पे आ रहा हूँ, यहाँ पे ऑल वार्म एंड फजी इनसाइड। तो हमें अभी इसको सीखना है, फॉर्मेटिंग करना सीखना है और साथ में अलाइनमेंट का भी सीखना है। सो ये जो टेक्स्ट है ऑल वार्म एंड फजी इनसाइड, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अगर मैं ये टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद स्क्रीन में। ओके, ऑल वार्म एंड फजी इनसाइड, इतने पोर्शन, इतने टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया। अब ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे ये सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे लेफ्ट
अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट है। तो मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड पे रहेगा टेक्स्ट, सेंटर क्लिक करूंगा तो ये सेंटर में रहेगा, और बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में था ही। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जस्टिफाई करेगा। जस्टिफाई मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, उस टेक्स्ट बॉक्स का लेफ्ट और राइट में जस्टिफाई करके वो टेक्स्ट को रखेगा। तो ऑल वार्म एंड, ये तीन जो लेटर है, ये तीन लेटर के बीच में उसने स्पेस बढ़ा दिया क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था जस्टिफाई। अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो वो स्पेस कम करके लेफ्ट अलाइन ही रखेगा और राइट हैंड साइड पे स्पेस दिखाएगा। सो इसको मैं फॉर्मेट करके सेंटर में ले रहा हूँ, और साथ में इसका फॉन्ट जो है ना वो 84 है फॉन्ट साइज, और फॉन्ट टाइप इम्पैक्ट है। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है, जैसे मुझे ये चाहिए तो मैंने ये सिलेक्ट किया, आरोही एहरो नी करके फॉन्ट मैंने सिलेक्ट किया, और इसकी साइज 84 है, इसलिए ये 3 लाइन में चला गया, ऑल वार्म एंड फजी इनसाइड। अगर मुझे 3 लाइन में नहीं चाहिए तो मैं इसकी रिड्यूस करता हूँ, जैसे 88 इतना हुआ, 80 इतना होगा, 72 इतना होगा, 66, यस 66 में 2 लाइन में आ गया। तो ऑल वार्म एंड फजी इनसाइड, ये मैंने फॉर्मेट किया इसको। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर जाके कलर चेंज कर सकते हैं। क्लिक टू ऐड एनी टेक्स्ट। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मैंने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट चाहिए वो मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में देखते हैं थोड़ा फॉर्मेटिंग करके, ये जो पेट ऑनर्स एक्सपीरियंस बेनिफिट सच एज, ये सारी चीजें लिखी है। अब मुझे ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट को एक साथ फॉर्मेट करना है। तो ये जो बॉर्डर बनती है ना, वो बॉर्डर के ऊपर एक बार क्लिक करना है। कौन सी बॉर्डर? टेक्स्ट के आसपास की जो बॉर्डर है, जो आपको डॉटेड ब्लू लाइन दिखती है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो ये फुल लाइन बन जाएगी, दैट मीन्स इट इज सिलेक्ट। ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो गया। अब मुझे पूरे टेक्स्ट बॉक्स को सेंटर, ये जितना भी कंटेंट वो सेंटर में चाहिए, तो ये सब सेंटर में आ गया। मुझे ये सारा बोल्ड चाहिए, तो ये बोल्ड पे क्लिक किया तो ये सब बोल्ड हो गया। ओके, इसका कलर मुझे ऑरेंज चाहिए तो ये ऑरेंज हो गया, रेड कलर चाहिए तो ये रेड हो गया। तो एक साथ सारी चीजें आप फॉर्मेट कर सकते हो। किती छान ना और कलर्स अगर और अगर मुझे सिर्फ एक, जैसे ये कंपेनियनशिप है, मुझे इतना ही एडिट करना है तो मुझे इतने को सिलेक्ट करना है, और एकच word ला सिलेक्ट करके मैंने ये किया लेफ्ट अलाइनमेंट, तो ये इतना टेक्स्ट ये लेफ्ट में आ गया। Okay. अगर इसको कलर मुझे चेंज करना है तो मैं इसका कलर ही चेंज करूंगा। तो आप इस तरह से इंडिविजुअली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिलेक्ट करके कर सकते हो, और पूरे टेक्स्ट बॉक्स की कंटेंट को करना है तो आपको डॉटेड लाइन पे क्लिक करके उसको हाईलाइट करना है, सिलेक्ट करना है। ओके, दूसरा एक यहाँ पे फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। यहाँ ये जो हिंज है ना, यहाँ से हम इसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं ऐसे। जब हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, मैं इसको वापस बताता हूँ, जब हम ये 4 कॉर्नर से ड्रैग करेंगे ना, तो वो प्रोपोर्शनली ड्रैग होगा। प्रोपोर्शनली का मीनिंग क्या है? उसकी जो हाइट है और जो विड्थ है ना, उस हिसाब से ये ड्रैग होगा ऐसे। हाँ, लेकिन मेरा माउस के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। अगर मैं प्रॉपरली कंट्रोल करके उसको ड्रैग करता हूं तो वो लेंथ और विड्थ दोनों प्रोपोर्शनली ड्रैग होगा। और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का है, एक डॉट दिख रहा है, जैसे ही मैंने कर्सर यहाँ पे रखा तो वो एक सर्कल जैसा बना। ये इंडिकेट करता है कि हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये मैंने इसको रोटेट किया look at तो it. ऐसे हुआ। बड़ा फिर रोटेट करता है था ये आता है ना अगर मैंने इस तरफ किया तो ये ऐसे रोटेट हो सकता है।
अगर मुझे ये डिड यू नो वाला टेक्स्ट बीच में आ रहा है तो मैं इसको देखो इस तरह से थोड़ा ऊपर ले गया ड्रैग करके, और ये पैट ऑनर्स एक्सपीरियंस थोड़ा टिल्ट हो गया। उसके बाद ये जो स्क्वायर बॉक्सेस दिखते हैं आपको, टेक्स्ट बॉक्स के आजू बाजू में स्क्वायर बॉक्स है, ये लाइन में सेंटर में है, यहाँ पर भी सेंटर में, ये सब जगह पर। अगर मुझे सिर्फ इतना ही पोर्शन को मैनेज करना है जैसे, तो ये सिर्फ इतना ही होगा, ये मैंने कम किया तो ये ऐसा दिखेगा, लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और वापस लाया। अगर मुझे लगता है कि मुझे ऊपर से इसकी हाइट कम करनी है ये वाली, तो मैंने इसको ऐसे किया, अले हाँ येगा कुछ फर्क नजर आया। इसके सारे फॉन्ट कैसे हो गए, स्मॉल बन गए। वापस मैं उसको यहाँ पे लाता हूँ तो फॉन्ट साइज बढ़ गए। Yes, sir. अगर मैं राइट हैंड साइड से करता हूँ तो ये राइट हैंड साइड से छोटा होता जाएगा और ये छोटा होगा। और कैसा दिख रहा है ये जो टेक्स्ट है ना, वो रैप होके नीचे आ रही है, अब ये छोटी हो गई। तो ये इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो अब आप लोगों को मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ करने के लिए। आप सबको क्या करना है, सेम स्लाइड्स जो मैंने दिखाई ना, वो आपको ओपन करनी है अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। और अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो पोर्टल पे जाके डाउनलोड कर लो। डाउनलोड हो जाता है तो मुझे बताइए। सर डाउनलोड की है हमने। डाउनलोड आपने कर रखी है, ओके। हाँ बाकी सब किसी का बाकी है डाउनलोड करना? यस सर। तो कितना वक्त चाहिए? सर 3 3 हाँ मिनट। सर। हाँ निनाद बोलो। हाँ मैं पोर्टल में जाकर डाउनलोड कर दूंगा सर। हाँ कर लो डाउनलोड, जितना हो सके जल्दी करो, नहीं क्योंकि हमारे ये पोर्टल पर जाके मैं डाउनलोड कर दूंगा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ओके, मैं आपके साथ अभी चैलेंज शेयर करता हूँ। आपको क्या करना है वो चैलेंज से आपको पता चलेगा। ओके, चैलेंज में जो लिखा है उसको फॉलो करो। सबसे पहले ओपन योर प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन, उसके बाद गो टू द स्लाइड 4 एंड देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन।
सर आलोक का हो गया है. गुड, वेरी गुड, ऑल द स्टेप्स डन. Yes. ओके, वेरी नाइस. सो एक काम करो, अगर आपने स्लाइड 4 पे चेंजेस जैसे इसने बताया ना वैसे कर दिए, तो आप एक और कोई और स्लाइड पे जाके और भी फॉर्मेटिंग ट्राई कीजिए. Okay. You want to change for flapjack? Okay. This is all this. Hmm. ओके, यशवंती प्रैक्टिस हो रही है. यस सर. गुड. सर एक प्रॉब्लम आ रही है छोटी सी. हम्म. जो आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि 2 लाइंस के बीच का गैप कैसे कम करना है, सर वो कम नहीं हुआ, ज्यादा हो गया. शेयर करो स्क्रीन. ओके. मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करता हूँ. अच्छा, निनाद रूही हो रही है ना प्रैक्टिस? नीलोफर हो रही है प्रैक्टिस? सर दिखाई दे रहा है? यस सर, हाँ रूही अब, कर रही है सर. ओके, हाँ अब दिखाई दे रहा है यशवंती. अब बताइए क्या नहीं हो रहा है, कौन से 2 लाइन के बीच में कम नहीं हो रहा है स्पेस? सर ये देखो. हाँ, सर सिलेक्ट इसके आपने. बाद हमें क्या, इस लाइन को मैं नीचे की तरफ खींचूं? हाँ, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है ड्रैग करने की, इसको ड्रैग करो. हम्म. हाँ, अब इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले जाओ. हाँ, अब छोड़ दो. नहीं हुआ सर. तो ये नहीं हो रहा है क्योंकि 2 लाइन एक साथ है ना, इसलिए आप कोई भी एक लाइन सिलेक्ट कीजिए. जैसे वो स्ट्रेस लिखा है ना, वो स्ट्रेस को पकड़ो. ये तो रहा, ऊपर ही तो है स्ट्रेस, STRESS लिखा है ना. हाँ, अब इसको ड्रैग करके वो सोशल अपॉर्चुनिटी के नीचे ले जाओ. सर ये तो बिल्कुल ही नीचे चला गया बीच में. नहीं तो बीच में छोड़ दिया इसलिए गया, अंडू करो, अच्छा. वापस करो. इसको सोशल अपॉर्चुनिटी के नीचे ले जाओ. हाँ, अब वहां पे छोड़ो. ऐसे होगा ये ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक ओके है, सर. गुड. हम्म. अब स्टॉप कर दो शेयरिंग. हेलो सर. हाँ, हेलो. हेलो. हाँ, एक्चुअली मैं प्रैक्टिस सबको कर करके जी झील के दिखाओ क्या, क्योंकि मेरे पास वो मेरे साथ माँ बैठी नहीं है, वो ओके, कुछ बाहर गई है. ठीक है. बाहर 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 गई है ओके, इसलिए. तो निनाद आप दिखा सकते हो अभी खुद?
क्या दिखाओ? आपको आएगा स्क्रीन शेयर करके दिखाना? आप मैंने प्रैक्टिस ही ओपन ही नहीं किया है वो अपने जो अच्छा, वो ओपन ही नहीं किया है। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। तो हाँ निनाद, आप है ना कल कल के क्लास में आओ ना, उससे पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? हाँ सर। ओके। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आज माँ आपके बाजू में बैठे नहीं हो, फिर भी आप खुद कर रहे हो। गुड। हाँ ऐसा हाँ अक्सर सर। करती है? ऐसा माँ आपके साथ अक्सर करती है कि यार पहली बार हुआ? हाँ आज? नहीं, हाँ आज आज कुछ काम से भर गई है। हाँ, मैं समझ गया। गुड। तो ऐसे अकेले भी आप क्लास कर सकते हो, इसका मतलब है ना? हाँ सर, हाँ सर। गुड गुड, एक्सलेंट। ओके, और कोई स्क्रीन शेयर करके दिखाएगा या कोई डाउट है? देखो, आज का टॉपिक एकदम इजी था, कुछ ज्यादा इसके अंदर नहीं है। यस सर, मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, प्लीज करो। हम्म, दिख रहा है अभी आपका स्लाइड। तो आपने क्या फॉर्मेट किया नीलोफर? सर फोर्थ स्लाइड लेके पहले हमने लोअर ब्लड प्रेशर को करना था ना, इन दोनों हाँ के बीच में ला, हाँ, ओके वो मैंने फिर वहां से कॉपी करके इधर लाया, ओके, गुड। लेकिन ऊपर इसका ये मतलब अलाइन नहीं हुआ। हाँ, तो ये अलाइनमेंट किसके साथ चाहिए आपको? पैट ऑनर्स एक्सपीरियंस बेनिफिट सच एज। तो ये सच एज है, वो कहाँ पे आना चाहिए? पी के नीचे सर ऐसा आना चाहिए ना। हाँ, तो आप एस के आगे कर्सर को रखो ना, एस के आगे। हाँ, अभी स्पेस बार से मूव होता है, स्पेस बार करने से नहीं, एस के आगे रखना है। एस तो अलग हो गया। लेफ्ट साइड से सर, हाँ, एस एस के आगे कर्सर रखो। इधर सर। हाँ, अब स्पेस बार से ट्राई करो। नहीं, ये नहीं होता नहीं है। हो रहा है, क्योंकि ये ना एक वन लाइन है ये। पेट ऑनर्स एक्सपीरियंस बेनिफिट सर्च एस, ये पूरी एक लाइन है, इसलिए वो सर्च एस को हम एक एक मतलब एक एक स्पेस बार से नहीं कर सकते इसको। एक बार टैब की प्रेस करके देखो, टैब। हाँ, एक बार नहीं, दो बार हो गया लगता है ये। एक ही बार होगा। ऐसा तो एक बार फिर से करो। अच्छा, ये इतना ज्यादा जा रहा है ना स्पेस। ओके, अंडू कर दो या वापस कर दो टैब, उसको अपनी जगह पे ला। अभी क्या करो, आप ये पूरी टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, पैट ऑनर्स एक्सपीरियंस बेनिफिट पूरा सिलेक्ट करो। ओके, अब यहाँ पे आप इसको क्या करोगे? लेफ्ट अलाइनमेंट है ना, उसकी जगह पे आप इसको जस्टिफाई करो। आपके उसमें जस्टिफाई है क्या? जी या सर। या सेंटर अलाइनमेंट कर दो। हाँ, यहाँ से ऊपर से जस्टिफाई मिलेगा नहीं, होम में से। जी, ये जस्टिफाई लो सर। जस्टिफाई, हाँ। ऐसा कुछ आ रहा है। नहीं हुआ जस्टिफाई से भी? नो ओके, तो दैट मीन्स आपको सेंटर अलाइनमेंट करना पड़ेगा ये टेक्स्ट को। सर। ओके, अब ऐसे मुझे सर। पता हाँ, ऐसे। अब मुझे पता चला कि आपका ये जो सर्चेज है ना, वो क्यों अलाइनमेंट नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने देखा जब आपने सिलेक्ट किया, तो बेनिफिट्स के बाद काफी स्पेस है, तो वो कहीं ना कहीं स्पेस बार यूज किया होगा बेनिफिट्स के बाद, इसलिए ये सर्चेज प्रॉपर नहीं आ रहा था अलाइनमेंट। अंडू करो इसको एक बार, अभी अपने सेंटर के अंदर अंडू कर दो। ठीक है, अभी देखो बेनिफिट्स के बाद जो स्पेस है ना,
वो नहीं होना चाहिए। तो एक और आइडिया है, मैं आपको देता हूँ। सच एस जहाँ पे लिखा ना, अभी इसको क्लिक करो बॉक्स के अंदर कहीं पर भी, अभी आपका कर्सर एस के बाजू में रखो, आपके कर्सर को एस के बिल्कुल बाजू में रखना है, क्लिक करके रखा। ओके सर। अभी अभी आप बैक स्पेस दबाइए, आपके कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करिए। सर टैप कर रही हूँ, कुछ नहीं होता लेकिन। अच्छा, नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे बेनिफिट्स लिखा है ना, वो बेनिफिट जी का जो बेनिफिट्स में जो लास्ट में एस है ना, वहां पे आपका कर्सर ले जाइए, बेनिफिट्स में एस के बाद। ओके, अब यहाँ ओके पे सर। डिलीट बटन दबाइए, डिलीट। हाँ, और नहीं, एस निकलना नहीं चाहिए, एस को रखो। ओके, अब डिलीट बटन दबाओ। लेकिन सर ये डिलीट होगा ना? डिलीट एक्चुअली एस कब डिलीट होता है, जब बैक स्पेस करते हैं तब होता है। डिलीट बटन प्रेस करने से एस डिलीट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये बैक स्पेस हो रहा है। डिलीट बटन एक बार फिर से करो प्रेस। किया सर मैंने। हाँ, फिर से करो एक बार, 2-3 बार करते जाओ, कुछ फर्क नहीं आ रहा है। हाँ, आया आया। अब एक बार स्पेस करो, सिर्फ एक बार, अब स्पेस बार एक बार यूज करो। तो ये किया सर एस, मैंने। तो ये एस किधर गया, ये क्यों डिलीट हुआ? पता नहीं सर। नहीं नहीं, पता नहीं, नहीं डिलीट बटन दबाया होगा ना, या बैक स्पेस दबाया होगा, इसलिए हो रहा है। 1 मिनट आप स्टॉप करो शेयरिंग। अच्छा, मैंने तो बहुत सारे चेंजेस कर दिए, तो मेरे में से तो दिखाने से कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये जैसे मैंने है ना, पेट ऑनर्स एक्सपीरियंस सच एस, ये मैंने सेंटर अलाइनमेंट किया था, इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट हटा रहा हूँ, आपके जैसा है ना वैसा लाने के लिए। और ये सारी चीजें जो मैंने सेंटर अलाइन की थी, ये लेफ्ट अलाइन कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा हो रहा है ना, बराबर नीलोफर? अभी देखो मेरे केस में कैसा है कि ये जो सच है ना, वो पैट के नीचे आ रहा है, पी के नीचे एस आ रहा है, और ये सारी चीजें जो है ना, वो अलाइनमेंट इसका ये सबका साथ में है, ऐसे आ रहा है ये। जी सर। तो आपको देखना है कि ये सर्चेस के बाद जैसे मैं ये बैक स्पेस किया ना, तो बेनिफिट सर्चेस यहाँ पे आए, और अगर मैं इसको टैप करता हूँ तो देखो ये टैप करने से ऐसे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट्स, अभी अगर मैंने ये लाइन, सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट किया, सिर्फ इस लाइन को, तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस है। आपके इसमें क्या था, जब आप पहले लाइन सिलेक्ट करते थे तो बहुत सारा बेनिफिट्स के बाद भी स्पेस दिख रहा था, इसलिए वो सचेस जो है ना, वो पी के नीचे नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली पी और एस एक दूसरे के नीचे नहीं थे। एक बार फिर से होमवर्क में इसको अलाइनमेंट करने का ट्राई कर लो। ओके सर। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ बैक स्पेस करता हूँ तो ये सारे यहाँ पे आ गए नीचे, सब एक अलाइन में हो गए। लेकिन यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ऐसे कि मुझे ये सब थोड़ा अंदर तो चाहिए ही, मेन जो लाइन है उससे थोड़ा इतना अंदर होना चाहिए, इसलिए मैंने एक सिंगल टैप प्रेस किया, तो ये सारे इस तरफ से अलाइन हो गए एक साथ। ठीक है, गुड। सो आज का ये सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे आप लोग यहाँ पे सब लोग हो तो पूछना है, कल का सेशन अगर मैं दोपहर को रखना चाहूँ तो आप लोगों को पॉसिबल होगा? यस सर। 2 to 3, कितने बजे सर? यस 2 to 3, जी ओके सर। एक एक करके बोलो। आलोक आपके ओके लिए सर। Yes, 2 sir. to Yes, 3 sir. अगर रखो तो आलोक को आएगा। Yeah. यशवंत जी? आगे नमाज। यस सर। ओके, निनाद, ओके सर। रूही,
यस सर। And Nilofer? हेलो नीलोफर, 2235 आएगा कल? जी सर, मैं अवेलेबल हूँ। ओके, आपने बोला ठीक है, तो कल हम 2 से 3 मिलते हैं, ठीक है ना? ओके सर। ओके, सर थैंक मेरा यू एक वेरी मच। क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। थैंक यू सर। ओके बाय। सर जैसे आप बाय। बाय। यशवंती, मुझे नेक्स्ट क्लास का मेरा टाइम हो गया है 8 o'clock को, मतलब 1 मिनट बाकी है, तो मुझे यहाँ से लॉग आउट करके लॉग इन करना है दूसरे को। ठीक है, ठीक है सर, फिर मैं कल हाँ पूछती बाय। हूँ। बाय सर। ओके बाय।